एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ, ਰੀਨਾ ਮਹਾਜਨ, ਰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ, ਰਜਨੀ ਮਹਾਜਨ, गौरव महाजन, शिप्रा गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਮੰਦਿਰ ਜੇਲ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਲਾਮਤ ਰਾਏ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਿਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਵਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਈਂਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ 1972 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 19 ਦਸੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ, ਰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤਲਾਬ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸੋਨੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਗੋਇਲ, ਸਿਮਰਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਨ 1995 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਆਰਤੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਲੌਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ, ਰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਾਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸ਼ਾਰ, ਕਵਿਸ਼, ਸਾਕੇਤ, ਦਿਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसी करनी कर चले तू हंसे जग रोए। तो इनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर कबीर दास जी का ये दोहा ऐसी सज्जनों के ऊपर सकार होता है। राम गए
छो नहीं जो सुपने संसार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का आगमन अपने जीवन के कालक्रम के हिसाब से अयोध्या में आप जी ने राज किया और फिर साकेत धाम को चले गए। रावण जैसा पराक्रमी वीर विद्वान ज्ञानी पुरुष भी, जिसका 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जिसके पूरे ब्रह्मांड पे राज हो, उसको भी एक दिन धरा मंडल छोड़ के जाना पड़ा। ये विधि का जो विधान है, इसे हर प्राणी को मानना पड़ता है, चाहे वो वीर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जड़ हो, चर हो, कोई भी क्यों ना हो, जो उपजो सो विनश्य है। जिस प्राणी का संसार में जन्म हो जाता है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ के हर चीज फानी है, सब नश्वर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सका। आइए स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी को नाम संकीर्तन करके हम विदाई दें, श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच में श्री तरसेम कपूर जी अपाहिज आश्रम से श्रद्धांजलि देने के श्री मनोहर लाल महाजन जी के इस सत्य विदाई सभा में उपस्थित हुए। श्री मनोहर लाल जी, स्वर्गीय मनोहर लाल महाजन जी का इतिहास ही ऐसा था, ऐसे काल उनका था। कोई स्थान, कोई सामाजिक स्थल, कोई भी संस्था, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां आप समय से ना पहुंचे। बिल्कुल कार्यक्रम करने वाले कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होते और श्री मनोहर लाल महाजन वहां पहुंच जाते। श्रद्धांजलि देने के लिए श्री सुरेंद्र शर्मा जी केसर वाले। तो कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसी संस्था जो जहां आप हाजिरी न लगाए। आइए हरि नाम संकीर्तन करके ऐसे महान भाव को हम विदाई दें, श्रद्धांजलि दें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उत्तरी क्षेत्र के विधायक श्री जूनियर हेनरी जी और उनके साथ विक्की कालिया, काउंसलर अनिल शर्मा जी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। लखा कर गए लखा ने तेरे जाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। लखा कर गए लखा ने तेरे जाना, जीना ने तेरा नाम जपिया। कई तर गए कईया ने तेरे जाना, जीना ने श्री राम जपिया। हरे राम राम राम
कि पापा वाले खेत बीज ले, राम नाम की कियारी क्यों ना बीजदा, कि पापा वाले खेत बीज ले, कंडा हो गया पापा दे नाल कालिया, कि द्वारिका चे रैन वालिया, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बीच में प्रिंस गोबर जी और कौशल यानी वृंदा देवी के प्रधान शर्मा जी, कौशल जी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पापी बैठा पतल ते रोए, कि धर्मी धर्मी पार लग गए, पापी बैठा पतल ते रोए, कि धर्मी धर्मी पार लग गए। सतगुरा ने जहाज बनाया, आओ जीने पार लगना, प्रभु प्यारे ने जहाज बनाया, कि आओ जीने पार लगना। हरे राम 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 हरे हरे। तो अखिल भारतीय गीता मंडल के प्रधान पुष्पेंद्र जी महाराज यहाँ उपस्थित है, मंच पे आए। इस तरह से नाम सिमरन ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके अलावा इस संसार की बाकी जो क्रियाएं हैं वो सिर्फ औपचारिकता मात्र है। स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी जलंधर, यूं कहें कि पंजाब में एकमात्र सिद्ध स्थल बाबा सोडल मंदिर के पास मंदिर में जाए, जो भी आपको वहां कोई निर्माण दिखा है, जो भी आज श्री शुद्ध बाबा सोडल मंदिर का स्थान देखने के योग्य है, उसमें स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी का बहुत बड़ा हाथ है। स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी ने सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा कमेटी का गठन किया और सबसे पहले आगे बढ़ करके तन मन धन से सेवा करी। उसका नतीजा है कि आज उस जगह पर आप जाएं, चाहे वो हाल है, चाहे मंदिर के नीचे का फर्श, चाहे वो तालाब है, चाहे मंदिर की निर्माण है, मंदिर की मूर्ति स्थापना है, वो जर्रा जर्रा बोलता है कि स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी ने कितने परिश्रम से, कितने भाव से सेवा करी, वो आज भी उन सब गवाह है। संस्था वाले पहले तैयारी करते रह गए, तैयारी करते करते उससे पहले आप वहां पहुंच जाते थे और तमाशा नहीं देखते, हाथ बटाते थे। तो हमारे बीच में तालाब कार सेवा कमेटी के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति श्री प्राणनाथ मल्ला जी यहाँ आए
श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं अशोक महाजन जी विशुद्ध परिषद से। तो सब जगहों पर बढ़कर आपने सेवा करी है और उसका रिजल्ट यही है, नतीजा यही है कि सभी लोग हर संस्था से आकर के आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ पल की जिंदगी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के जिस तन को है तूने निखारा, इत्रों की खुशबू से जिस तन को महकाया, काया न साथ होगी ये बात ना भुलाना। कुछ पल की जिंदगी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी भोजन किए, धूप से निकल के घर में गए, भोजन किए और भोजन करने के उपरांत कहते हैं थोड़ा पानी पिला लो। पानी आया, पानी पिया और पोतरा तुषार बताता है कि पंडित जी 14-15 सेकंडों में ही शरीर का त्याग कर दिया। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहे, कुछ बात नहीं। और यहाँ भी वो श्लोक साकार होता है भगवत गीता का जी, बासांस जीर्णानि यथा विहाय। जैसे प्राणी पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, नवान्नाति गृह्णाति परो नराणि, वैसे ही 14-15 सेकंडों में 5 तत्व का बना चोला आप जी ने त्याग किया। निष्कपट निश्चल थे, कोई हेरे फेरी नहीं। और एक उनकी खासियत ये थी, कभी अपने सिर पे कर्जा नहीं चढ़ने दिया। उतने ही काम करते थे जितना उनके पॉकेट में होता था। हम लोगों को भी मना कर देते थे, नहीं पंडित जी इतने ही करना चाहिए, और ऐसे ही वो करते रहे। और जो जो सोलर मंदिर उन्होंने रौनकें लगा दी, मेरे को तो अभी 60 साल की उम्र हो गई, मेरे को अब तो नहीं लगता ऐसे। तो ये है एक है मनोहर लाल महाजन जी। कुछ पल की जिंदगी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे,
पल का नहीं ठिकाना। आएगी जब वो घड़ी कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारा एक एक हिसाब होगा। एक सोच ले अभी तू, फिर वक्त न आना। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगी एक पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। हर भोर की किरण संग तू हरि का भजन है गाना। बरसों की क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगी एक रोज सबको जाना। तो ये है श्वासों का कोई पता नहीं, चंद घड़ियों की जिंदगी मिली है। और जो लोग ऐसे कारनामे मनोहर लाल, स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी जैसे कर जाते हैं, वही लोग अमर होते हैं। जो समाज के लिए कुछ कर जाए, अपने धर्म अपने कौम के लिए जो कुछ कर जाए, उसका इस लोक और परलोक दोनों में नाम होता है। और उन्हीं में स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन थे। बाकी सब कुछ जीरो है। जो आप अच्छे कर्म कर जाओगे वो कर्म याद रहेंगे। दाम पैसा नहीं याद रहेगा, लेकिन अच्छे काम अगर आप कर दिए तो वो हमेशा याद रहेगा। सजले सवेरे ले जिना तो सजना। अपने ऊपर जितना मर्जी पैसे लगा लो, अरबों खरबों की कोठियां बनवा लो, खूब अपने आप को बना लो, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं। भगवती सेवा सोसाइटी से सहगल जी, स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी कुछ श्रद्धांजलि देने यहाँ आए। सजले सवरले जिना तो सजना, मिट्टी दे या भांडया आखिर बेचना। मिट्टी दे या मिट्टी विच मिल जावेगा, पता नहीं हो केड़े बेले तो तुरे जाएगा। खाली हाथ आया खाली जाना सजना, मिट्टी दे भांडया आखिर बेचना। श्री राकेश महाजन जी मथुरा नगर वेलफेयर सोसाइटी से स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी को श्रद्धांजलि देने के आए। हाँ, वयोवृद्ध आरएसएस के नेता श्री देवेंद्र प्रसाद गुप्ता जी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी को श्रद्धांजलि देने को उपस्थित हुए हैं। माता पिता बहन भाई नर नारियां शौके बेले दिया सब रिश्तेदारियां, और के बेले किसी ने ना नाल लगना, मिट्टी दे भांडया आखिर बेचना। श्री कृष्ण महोत्सव कमेटी की शोभा यात्रा जलंधर शहर में अगर शुरू हुई और उसको सिरे तक चढ़ाना और उसे कई सालों तक चलाए रखना, ये श्री स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी का
ही फल था। और उस समय कृष्ण महोत्सव कमेटी के कैशियर श्री गुप्ता जी यहाँ श्रद्धांजलि देने आए। अपने प्रसिद्ध देवस्थल श्री देवी तालाब स्वर्ण मंदिर जो है उसके और सनातन धर्म के ध्वज श्री राजेश बिज जी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी को श्रद्धांजलि देने आए। श्री रामनवमी उत्सव कमेटी के सेक्रेटरी साहब अवनीश अरोड़ा जी और हमारे दक्षिण क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री महेंद्र पाल जी और श्री सतीश शर्मा कालिया जी, ठीक है, वही जो सतीश तो ठीक है, श्री विपिन जी, सुभाष शुभ जी एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो अगर मैं सबका नाम लेता रहूं तो मैं बता नहीं कर पाऊंगा। सभी श्रद्धांजलि देने आए हैं। सबकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी को और हमारे दक्षिण क्षेत्र से विधायक सुशील रिंकू जी भी यहाँ उपस्थित है श्रद्धांजलि सभा में। सुंदर हवेलियां ते इह बेंगले इथे छड़ जाने ने पलंगे रंगले काल दा नगाड़ा श्री उते बजना मिट्टी दे भांडिया आखिर भेजना चढ़ा बिरादरी से विजय बहादुर जी क्या जंग बहादुर जे भी चढ़ा और महेंद्र अग्रवाल जी श्रद्धांजलि देने आए। धुरा वाली गड्डी ते सवार होएगा टिकट बगैर तू ख्वार होएगा सजले सवेरे ले जिना तू सजना मिट्टी दे भांडिया आखिर बेचना। तो जितनी ये चमक दमक है जो भी कुछ है सब यहीं पे रह जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ अगर जाना है तो जैसे श्री मनोहर लाल स्वर्गीय मनोहर लाल महाजन जी ने कर्म किया कि हर संस्था चाहे वो राजनीतिक है चाहे वो सामाजिक है धार्मिक है कुछ भी हो छोटी हो बड़ी हो हर जगह अगर किसी ने अपना समय दिया है तो स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी हैं। लोग तो पैसे कमाते धन कमाते उनको कोई नहीं याद करता सज्जनों। तीसरी पीढ़ी में दादा परदादा का नाम पूछो तो घर वालों को नहीं याद होता, ताया जी से पूछो। लेकिन जिन्होंने कर्म अच्छा कर दिया उन्हें जर्रा जर बच्चा बच्चा जानता है फला। तो ये हमारे स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी, क्योंकि शास्त्र का मानना है कि यहां से कुछ साथ नहीं जाता। सिकंदर बादशाह ने इस बात को अच्छी तरह समझा और अपने मृत्यु से पहले अपने शिवाचार्यों से बात कही कि मेरे जनाजे के समय मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकालना, जो बड़े हीरे जवाहरात लूटे उसको जमीन पर बिखेर देना जनाजे के आगे। इस बात को समझा कि यहां से कुछ नहीं जाने वाला। तो कवि ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से
कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री सुदेश शारदा जी, राजेश जी और पंजाब केसरी श्री दिनेश शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हुए। ये हाट बाट तेरी, ये आन बान तेरी, जाएगी यहाँ पर ये झूठी शान तेरी। बस ईगो रह जाता है, पल्ले का नहीं जाता। जिसको समझता अपना सब कुछ ही नाश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आता है बंद मुट्ठी खाली यहाँ से जाए, मरते वक्त पे पगले कोई खास होगा। ए भाई भाई जो भी तुझे अपना बताते हैं, मरने के बाद ही तो अग्नि जलाते हैं। अब भी समझ ले सागर वरना निराश होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। तो अब मैं आग्रह करूंगा संजीव जी से, इसका खत्म कर दे तब कर देते। तो चंद श्लोकों में इस परिवार ने बड़ी श्रद्धा भाव से स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी की आत्म शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ रखाया। बड़े प्रेम भाव से कथा का श्रवण किया। अब चंद श्लोकों में गरुड़ पुराण सुनने का जो महत्व है मैं सुनाता हूँ। इसके बाद श्री वीरेंद्र शर्मा जी के पास बहुत सारे श्लोक प्रस्ताव आए हैं, आगे की कार्य श्री वीरेंद्र शर्मा जी करेंगे। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गरुड़ पुराण की जय। भगवान नारायण बोले, हे गरुड़, मैंने सब अर्थोदय क्रिया की कथा कही। जो 10 दिन के अंदर सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों का यामुष्मिक कर्म मुक्ति, पुत्र की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, परलोक और श्लोक में सदा सुख देने वाला है। जो नास्तिक नीच अर्थोदय क्रिया कर्मों को नहीं करते उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। देवता और पितर उसके घर को नहीं देखते और उनके पितरों के नाराज होने से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र अन्य जो भी प्रेत कथाओं को प्रेत क्रिया कर्मों को नहीं करते उनको चांडाल के समान समझना चाहिए। प्रेत कल्प को जो सुनता सुनाता है वे दोनों पाप से मुक्त हो दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। जो माता पिता के मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण श्रवण करता है उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त करते हैं और वह पुत्र संतान वाला होता है। जिसने ना गरुड़ पुराण सुना न गया श्राद्ध न वृको संग न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, भला उसको पुत्र कैसे कहा जाएगा? और वह पुत्र 3 प्रकार के कर्जों से कैसे मुक्त होगा? अपने माता पिता के तारण में वो कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण श्रवण करने से धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक पवित्र करने वाला पाप नाशक ये गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को
परिपूर्ण करने वाला है। सर्वदा सुनना चाहिए। इसके श्रवण मास से ब्राह्मण विद्या को प्राप्त करता है, क्षत्रिय जमीन को प्राप्त करता है, वैश्य धन को प्राप्त करता है, शूद्र पापों से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वाले को ऊपर कहे हुए सज्जा दान, अन्नदान करने का फल जब तक ना करें तो फल नहीं होता। पहले गरुड़ पुराण की पूजा वस्त्र अलंकार से करें, फिर कथावाचक की पूजा करें, इससे मेरी पूजा हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। तो इस तरह से स्वर्गीय श्री मनोहर लाल महाजन जी के आत्म शांति के लिए रखे हुए उनके पुत्रों द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा तीनों लड़कों से, संजीव, गौरव और तीनों आके रुमाला चढ़ाएं। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ पुराण की जय। जय जय सीताराम। अब मैं आग्रह करूंगा श्री वीरेंद्र शर्मा जी से आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत बस एक आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यह अटल सत्य है। मेरे सहित सबको एक दिन इसी तरह से आवाज आएगी और ये घर छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। अटल सत्य ये भी है कि कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिनके चले जाने के बाद जीवन भर हम उसे भूल नहीं पाते। यह भी अटल सत्य है कि बहुत कम ऐसे मित्र होते हैं जीवन में जिनके चले जाने से कई बार आपका हृदय फटने को हो जाता है। यह भी अटल सत्य है कि कुछ लोगों के चले जाने के बाद एक ऐसा खाली बनाता है जो जीवन में कभी भरता नहीं। और ये अटल सत्य है कि मैंने जितनी बातें कही हैं वे सब बातें मेरे बड़े भाई, मेरे परम मित्र, मेरे स्नेही, मेरे मार्गदर्शक मनोहर लाल महाजन जी के ऊपर ही कही गई। मैं कैसे भूलूंगा, श्री रामनवमी का उत्सव आता था, शोभा यात्रा, तो हमारा कार्यक्रम होता था मंदिरों में सुबह जाना है लोगों से संपर्क करने के लिए। तो मैं अभी तैयार नहीं हुआ होता था, वो रोज सुबह मेरे घर में आ जाते। हमारे कुछ और साथी भी साथ में जाते थे, प्रवीण कोहली जी, नरेंद्र शर्मा जी, बेरी साहब, अमरनाथ यादव, ये सब लोग बाद में आते। फोटोग्राफर मोहन कपूर हमारे साथ चलता था, वो कई बार आधा आधा घंटा लेकर आता था। लेकिन महाजन साहब जितना समय सुबह दिया होता था उससे भी 2 मिनट पहले आकर बैठ जाते थे। मैं कैसे भूलूंगा कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं होती थी मंदिरों की, और उन्हें हर मंदिर जुबानी पता था कि कितने मंदिर हमने कर लिए, कितने रह गए, कितने शहर में नए बन गए हैं, वहां भी पहुंचना है। मैं सोचता हूं श्री रामनवमी तो फिर आ गई, 10 अप्रैल तो फिर निकलेगी शोभा यात्रा।
लेकिन इस पर कौन होगा मेरे साथ? साथ तो होंगे और भी, लेकिन जिस प्रकार से वो चलते थे, जिस प्रकार से वो कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे, मेरे बस का काम नहीं है। और मुझे याद है कई दिन तो मैं कह देता था आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आप ही जाए आओ। अकेले भी चले जाते थे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी कौन नहीं जानता, भव्य शोभा यात्रा और आयोजन के पीछे केवल और केवल मनोहरलाल महाजन जी होते थे। वफादारी अगर सीखनी हो, सिंसियरिटी अगर सीखनी हो, नम्रता अगर सीखनी हो, तो उनसे सीख सकते हैं। मैं हैरान था, कभी कभी मुझे कहते, मैं उम्र में छोटा हूं उनसे बहुत, लेकिन उल्टा मुझे कई बार कह देते मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, जो सिखाने की क्षमता रखता हो, आयु में बड़ा हो, जो अनुभव में बड़ा हो, वो अपने से छोटे को कहे मैं तुमसे सीखता हूं। ये सादापन, ये नम्रता, सोचता हूं कहां से ढूंढ के लाऊं। और समय की पाबंदी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मुझे अच्छा लगा जब गौरव, संजीव, राजीव ने मुझे कहा कि हमें उनके श्रद्धांजलि समारोह को भी लेट नहीं करना है, हमें दिखावा नहीं करना है, हमें बहुत श्रद्धांजलियां नहीं दिलवानी है। वो समय के पाबंद थे, तो उनका ये कार्यक्रम भी हमें समय पर समाप्त करना है। पंडित अनिल जी ने पूरे 2 बजे भोग डाल दिया इसलिए, और मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मन भावुक है। लेकिन एक बात, जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं और जिस प्रकार से मन में आंसू लेकर आए हैं, आंखों में आंसू शायद न हो, लेकिन मन में सबके आंसू हैं यहाँ पर। कबीर जब तुम आए जगत में जग हंसा, तुम रोए ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। आज जग रो रहा है, और जो संस्कार वो देकर गए हैं अपने बच्चों को, समाज को, उस संस्कार हम सब अगर यहाँ से ये प्रण करके जाए कि इन्हीं संस्कारों पे हम चलेंगे, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पहली श्रद्धांजलि सच्ची है कि हम समय पर इस कार्यक्रम को भी संपन्न कर रहे हैं, उनकी समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए। मैं परिवार की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सबकी भावनाओं को प्रभु के चरणों में, शब्द में शक मेरे हो, लेकिन भावनाएं आपकी हैं। आप सबकी भावनाएं अपने शब्दों में सजोकर परमपिता परमात्मा से, परमेश्वर से, आप सबकी लोगों से, सबकी तरफ से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे प्रभु, हालांकि मैं ये कहना नहीं चाहता कि प्रभु ने अपने चरणों में निवास देना, क्योंकि जी चाहता है कि ऐसे लोग बार बार आए, अच्छे लोगों को बार बार आकर बार बार अच्छे अच्छे संस्कार देकर जाने चाहिए। लेकिन प्रभु अगर उन्हें मोक्ष दें, अपने चरणों में रखें, ये प्रार्थना आप सबकी ओर से करना चाहता हूं। और एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं कि जो प्यार महाजन साहब के साथ आपका था, ये प्यार परिवार के साथ उसी तरह से बना के रखिएगा। संजीव, गौरव, राजीव, आगे उनके बच्चे हैं, ये मोहब्बत इसी तरह से कायम रहे, इसी तरह से बना के रखिएगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो बाबूजी का टेलीफोन आया, आदरणीय विजय कुमार चोपड़ा जी का। पहले उनका आने का कार्यक्रम था, लेकिन हल्की तबीयत
थोड़ी सी खराब, और दूसरा कोविड का बढ़ता डर। डॉक्टर्स आज्ञा नहीं देते हैं, 90 वर्ष के हो गए हैं इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी तरफ से जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करना, वहां बच्चों को आशीर्वाद देना, और मेरी तरफ से न केवल सांत्वना व्यक्त करना बल्कि यही कहना कि पंजाब केसरी परिवार पहले की तरह इस परिवार के साथ खड़ा है। और एक प्रार्थना आप सबको परिवार की ओर से, जो मोहब्बत यहाँ आकर आपने दिखाई है, उस मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन स्वीकार कीजिएगा। भोजन प्रसाद आप सबके लिए तैयार है, भोजन प्रसाद सब पा के जाइएगा। इसलिए नहीं कि आप खाना खाएं, इसलिए कि ये मोहब्बत मजबूत हो। खाना तो सब खाते हैं हम लोग, लेकिन रुकिएगा थोड़ी देर और। अगर 15 मिनट श्रद्धांजलियां होती तब भी आपको बैठना पड़ता, लेकिन ये 15 मिनट दे के जाइएगा और भोजन प्रसाद लेकर जाइएगा। बहुत से महानुभाव आए, बहुत से शोक संदेश मेरे पास आए हैं। विधायक बाबा हेनरी जी, विधायक राजेंद्र बेरी जी, विधायक सुशील रिंकू जी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया जी, पूर्व विधायक केडी भंडारी जी, जालंधर के मेयर जगदीश राजा जी, तजेंद्र बिट्टू जी, श्री देवी तालाब मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज जी, वो भी होके गए हैं। उन सबका भी आभार। आप सब लोग जो आए हैं, आपका एक एक कदम महाजन परिवार के सराखों पर है। परिवार आपका ऋणी है कि आपने दुख की घड़ी में आकर इस दुख को बांटने का प्रयास किया है। बहुत से शोक संदेश मेरे पास आए हैं, मैं उन्हें भी पढ़ देना चाहता हूँ। भगवान जगन्नाथ सोसाइटी केदार राय जी, जो बहुत मित्र हैं महाजन साहब के, एंटी करप्शन सोसाइटी यश पहलवान जी लेके आए हैं। जगदम्बे नौजवान सभा रमेश जी, प्रवेश जी, जोगिंदर जी, रेहान जी, सब लोग यहाँ उपस्थित भी हैं। जालंधर गीता भवन ट्रस्ट श्री गीता मंदिर आदर्श नगर गोल्डी मरवाहा जी स्वयं भी आए हैं। श्री सनातन धर्म महावीर दल पंजाब की ओर से प्रवेश शर्मा जी, गुलशन शारदा जी, सबकी तरफ से। जगदम्बे राशन वितरण कमेटी सोडल मंदिर, श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर तालाबकार सेवा कमेटी की ओर से यशपाल ठाकुर जी, चमनलाल शर्मा जी, अन्य महानुभाव भी हैं। स्त्री सत्संग सभा श्री महालक्ष्मी मंदिर प्रधान बहन सुनीता भारद्वाज जी स्वयं भी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय सेवा परिषद की तरफ से प्रवीण कोहली जी स्वयं भी आए हैं, शोक प्रस्ताव भी आया है। कश्यप नौजवान धार्मिक सभा पवन कुमार भोटी जी, श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जहां पर हम लोग इस वक्त बैठे भी हुए हैं, प्रधान दर्शन लाल जी। हिंद सेवा समिति सुनील शर्मा जी, विश्व दुर्गा मंदिर नौजवान सभा की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव कमेटी जेबी सिंह चेयरमैन जी, जिनके साथ प्रधान थे कहते हुए मेरी जुबान कांपती है, मनोहर लाल महाजन जी। और श्री रामनवमी उत्सव कमेटी के महासचिव श्री अवनीश अरोड़ा जी, चमनलाल खन्ना जी, श्री अशोक ग्रोवर प्रिंस जी, डॉक्टर मुकेश वालिया जी, सुनील शर्मा जी, रमेश सहगल जी, पवन कुमार भोंडी जी, विनोद अग्रवाल जी, शिव कंवर सिंह संधू जी यहाँ हैं। नौरिया मंदिर की तरफ से डॉक्टर राजकुमार जी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं। सुरेंद्र शर्मा जी केसर वाले, नरेंद्र शर्मा जी, सुमित कालिया जी, अन्य अनेक महानुभाव जिनके मैं नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप सबका आभार और फिर एक बार से करबद्ध प्रार्थना
सभी लोग भोजन प्रसाद, ये प्रेम रूपी प्रसाद है, ग्रहण करके जाएंगे।